हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਸਮਰੀ ਆਫ ਦ ਪਲੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੇजेस ਹਨ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਐਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਲੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है बल्गेरिया एंड सर्बिया के विचकार। ठीक है जी। तो मेन जो फर्स्ट सीन है वो स्टार्ट होएगा पेटकॉफ फैमिली दे विच रैना दे बैडरूम दे तो मतलब बैड चैम्बर तो क्लियर। तो बाहर जो टाइम है वो 1885 का टाइम है, नवंबर की टाइमिंग्स है तो नाइट सीन है। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਵੈਨ ਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਆਫ ਦ ਪਲੇ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਦ ਪਲੇ ਓਪਨਸ ਇਨ ਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਡ ਚੈਂਬਰ ਇਨ ਬਲਗੇਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੈਡ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਆਫ ਨਾਈਟ late in November in the year 1885. 1885, Rana, the heroine of the play, is standing on the balcony of her bed chamber. वो अपने bed chamber ਦੀ balcony ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ and enjoying the beauty of night। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹਨੇਰਾ, ਸਟਾਰਸ, ਦੈਨ ਬਾਲਕਨਸ ਜੋ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ। she also looks at the snowy balkans मतलब ये range of mountains है बल्गेरिया ਦੇ ਵਿੱਚ। her father मेजर पेटकॉफ and her fiance मेजर सर्जियस सेरेनॉफ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਮੇਜਰ ਪੈਟਕॉफ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਓਂਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਰਜੀਅਸ ਸੈਰਨੋਫ। have gone to the war front to fight against Serbs। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਬਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਨ। ਐਕਟ 1 ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੈਨਾ ਪੈਟਕॉफ। ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੈਨਾ ਪੈਟਕॉफ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੀਰੋਇਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਵਰ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਵਰ ਆਫ ਨੇਚਰ। देखो बाहर वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, सेंसेशनल माहौल बनया हुआ है। ठीक है, बट शी इज़ इंजॉइंग नाइट सीन, शी इज़ इंजॉइंग नेचर बाय स्टैंडिंग एट द बालकनी। हुण बालकनी की हुंदा बेटा? यू कैन लुक एट दिस पिक्चर। बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन नाल एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज़ अ बैडरूम, बैड चैम्बर। ये रैना दा बैडरूम है। पहला बैड के पिछे जो है वॉल के उपर पेंटिंग्स है, जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो है। दैन एक ऑटोमैन मीन्स एक छोटा सोफ़ा है, वॉश बेसिन है, कर्टन्स है, मिरर है एंड रैना इज स्टैंडिंग द बालकनी। देखो बालकनी मीन्स थोड़े रूम के बाहर एक स्पेस बनी है तो बाहर उच्चों नज़र आता है। तो एक ही है बालकन्स, माउंटेन्स है। ठीक है, माउंटेन रेंज है जिन्हों कि इंजॉय कर रही है। असं देख रहे हैं कि रात का सीन है। तो बहुत अच्छे तरीके नाल तुसी एक्सप्लेनेशन इनू जो है समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। क्लियर। एक कारपेट जो बिछा हुआ है ये बैडरूम, बैड एंड ऑटोमैन मतलब जो छोटा सोफा है तो बैड के विचकार एक जो कारपेट है वो भी विछा हुआ है। मीनस इनू देख के असी पता लगा सकते हैं कि एक रॉयल फैमिली एक चंगी फैमिली के घर का एक बैडरूम है। क्लियर। मीनस रैना पैटकॉफ बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। दैन नैक्सट एक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है बच्चे कि रैना के बैडरूम का या बैड चैम्बर तो एक ब्रीफ नोट लिखो। क्लियर। या वॉट इज़ अ ओपनिंग सीन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैन नाउ वॉट हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट सीन की है बेटा? रैना's mother Catherine enters the bed chamber। now she gives Rana a very happy news। हुण ओहदी मदर
ਲੇਡੀ ਕੈਥਰੀਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਟਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੌਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਰਬਸ ਐਂਡ ਬਲਗੇਰੀਆ ਐਟ ਸਲਿਵੈਂਟਿਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬਸ ਐਂਡ ਬਲਗੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਵੇਅਰ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਸਲਿਵੈਂਟਿਜ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਿਵੈਂਟਿਜ਼ਾ। ਨਿਊਜ਼ ਹੈਜ਼ ਰੀਚ that the battle has been won by the Bulgarians। ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਰੈਨਾ ਦੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਰੈਨਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਥਰੀਨ ਆਲਸੋ ਟੈਲਸ ਰੈਨਾ that her fiancé Sergius is a hero of the hour। ਹੀਰੋ ਆਫ ਦਾ ਆਰ ਮਤਲਬ ਸਰਜੀਅਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਲੈਡ a brave cavalry charge against the Serbs। मतलब जो कैवलरी चार्ज है होर्स ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਜੀਅਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਐਕਟਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਥਰੀਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਆਰਡਰਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਈਵਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਾਂਡਰਸ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਵਲਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬਲਗੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਰੈਨਾ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡ ਹਰ ਸੈਲਫ ਵਿਦ ਜੋਏ। ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਾ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਆਫ ਦਾ ਫਿਆਂਸੇ। ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਮੀਨਸ ਹੈਪੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ that her fiancé is really the hero of her dreams। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। she tells her mother that she had doubted if Sergius would show any real bravery। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਜੀਅਸ ਕਦੀ ਬਰੇਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਬਰੇਵ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਦੈਟ ਮੈਨ ਲਾਈਕ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈਵ ਹਾਈ रोमांस अबाउट दैम। ठीक है जी। तो जो सर्जियस है, सर्जियस वर्गे इंसान है वो बहुत ज़्यादा हाई आइडियल होंगे है। जस्ट दैन द हाउसमेट, हुण नेक्स्ट करैक्टर कौन है, हाउसमेट लूका। तो कौन एंटर करता है बच्चे, लूका कम्स देयर। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग। जो लूका है बहुत सोहनी है, ब्यूटीफुल है एंड यंग है। शी गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट सर्ब्स आफ्टर देयर डिफीट हैव फ्लैड फ्रॉम द बैटलफील्ड। कि जदों बल्गेरियन सोल्जर्स ने अटैक किया, कैवलरी अटैक किया, किन्ना ते अटैक किया, सर्बियन सोल्जर ते। तो सर्बियन सोल्जर्स जो बैटलफील्ड दे विचों भज चुके हैं एंड द फ्यूजिटिव सोल्जर्स मे एंटर द टाउन। तो जिहड़े फ्यूजिटिव है, फ्यूजिटिव हुंदा भज्जे होए सोल्जर वो टाउन दे विच एंटर कर सकते हैं। इन दैट केस देयर कुड बी शूटिंग इन द स्ट्रीट्स। तो गलियां दे विच शूटिंग मतलब गोली चल सकती है। सो लूका सजेस्ट दैट ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस मस्ट बी बोल्टेड। तो उसके अकॉर्डिंग सारे डोर्स ते विंडोज़ नूं बंद कर देना चाहिए। इट कैन बी रिस्की। दैन कैथरीन एंड लूका गो डाउन स्टेयर टू सी इफ थिंग्स आर ऑल सेफ, कि सब कुछ सेफ है। When Rena is alone in her bedroom, ਜਦੋਂ ਰੈਨਾ ਕੱਲੀ ਹੈ, she takes out Sergius' photograph from the chest of the drawers। ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਜੀਅਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੈਸਟ ਆਫ ਦ ਡਰਾਅਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਡਰਾਅਰ ਚੋਂ। ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਿਸ ਔਰ ਐਮਬਰੇਸ ਇਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਮਬਰੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੀ ਓਨਲੀ ਰੇਜ਼ਿਜ਼ इट अबव हर हैड। तो वो सिर्फ उस फोटो को ऊपर चुकती है। इन दिस वे शी शोज़ हर रिस्पैक्ट एंड एडमायरेशन रैदर दैन हर लव फॉर हिम। तो वो की कर रही है, सिर्फ वो अपनी रिस्पैक्ट शो कर रही है तो तारीफ कर रही है rather than love। means she is not in love with Sergius, she only admires him। admires मतलब सिर्फ ਉਹਦੀ रिस्पैक्ट करती है, ਉਹਦੀ तारीफ करती है, ਉਹਦੀ प्रेज कर सकती है, ਉਹਨੂੰ प्यार नहीं करती। Soon a distant shot breaks the silence of the night। now what will happen। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਨਾ hastily
hastily मतलब तेजी नाल, blows out the candle and lies down in her bed. Candle बुझाती है, blows out the candle and lies down in her bed, ते अपने बेड ते सो जाती है. But suddenly someone opens the window of her bedroom and comes in. ਤਾਂ फटाफट अचानक ही कोई आंदा है ते ਉਹਦੇ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर करदा है. Rena asks, who is there? In reply, a man's voice is heard warning her, don't call out or you will be shot. ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ. ਰੈਨਾ ਲਾਈਟਸ ਅ ਕੈਂਡਲ, ਰੈਨਾ कैंडल जलाती है. शी सीज अ यंग सर्बियन सोल्जर इन फ्रंट ऑफ हर. ताकि देखती है एक यंग सर्बिया का जो सोल्जर है वो सामने है. मीनस उन्होंने एनमी मतलब उन्होंने दुश्मन सामने है. बट रैना इज़ रियली ब्रेव. तो बिल्कुल डरती नहीं है, बहुत ब्रेवली रिएक्ट करती है. हुण तक असी देखा है कि रैना इज़ वॉट, रैना इज़ इन रोमांस विद नेचर. वो कुदरत के नाल उन्होंने प्यार है. रैना इज़ ब्रेव. ठीक है जी. रैना इज़ डॉटर ऑफ रॉयल फैमिली, एक चंगे परिवार की बेटी है. दैन रैना इज़ betrothed, engaged with सर्जियस, बट शी इज़ नॉट इन लव विद सर्जियस. बेटा ऐदा ही करैक्टर बन जाते होंगे. करैक्टर स्कैच लिखना आएगा तो ऐदा ही करैक्टर डिवेलप हो जाता है. नैक्सट, she sees a fugitive Serbian soldier tells Rana that he is being chased by Bulgarians. तो एक सर्बिया का सोल्जर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि बल्गेरियन सोल्जर्स उन्होंने सर्च कर रही है. इफ़ ही इज़ कॉट, जो उन्होंने पकड़ लिया गया, ही इज़ श्योर टू बी पुट टू डेथ. तो ये पक्का है कि उन्होंने मार देंगे. बट रैना इज़ स्टिल लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ रोमांस एंड आइडियलिज्म. पर रैना हजी आइडियलिज्म, रैना की है आइडियलिज्म मतलब एक अपनी ही विचारधारा का एक संसार बनाया हुआ है. शी सेज दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ. तो वो कहते भी सोल्जर को डरना नहीं चाहिए मौत तो. दिस इज़ आइडियलिज्म. आइडियल मतलब आइडियलिस्टिक, जो असी आइडियल विचारधारा अपने दिमाग के रखी है, अपनी विचार साढ़े की है उस चीज़ को लैके. बट अ फ्यूजिटिव सोल्जर इज़ डाउन टू अर्थ रियलिस्ट. पर जो सोल्जर है वो की है, रियलिस्ट है. मीन्स दोनों ओपोजिट है. रैना इज़ आइडियलिस्ट एंड द सोल्जर इज़ रियलिस्ट. ही सेज दैट all soldiers are afraid to die. वो कहता है कि सब सोल्जर्स ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Like other human beings, a soldier too wants to live as long as he can. This is important dialogue by the stranger. कि एक सोल्जर भी जिंदा रहना चाहता है जिन्नी देर तक वो रह सके. ठीक है. द मीन्स ही इज़ रियलिस्ट, मतलब जिंदगी जिंदगी की सच्चाई को सामना करना चाहता है. कोई भी एवं नहीं मरना चाहूगा जानबूझ के, चाहे वो सोल्जर है चाहे कोई आम परसन है. बट रैना कहती है कि एक सोल्जर को मरण तो डरना नहीं चाहिए. सो दोनों की विचारधारा के बहुत ज़्यादा फर्क है. दैन द सर्बियन सोल्जर अगेन थ्रेटन्स टू शूट रैना इफ शी रेजेज एनी ह्यू एंड क्राई. द सर्बियन सोल्जर की कहता है कि आई विल शूट यू, मैं तेन मार दूंगा जे तू आवाज़ की. ह्यू एंड क्राई मतलब रोला पाना, ह्यू एंड क्राई मतलब चीख चाटा करना, रोला पाना. He knows that if he raises a cry, the Bulgarian soldier will come there and will simply butcher him to death. Butcher him to death मतलब उन्होंने गोलियां नाल भुन देंगे. Butcher means जिवें कि एक कसाई वड्डदा है, ठीक है, किसी भी जानवर नूं उवें उन्होंने वड्ड देंगे. क्लियर. Then he notices that Rana is not properly dressed. तो पहला तो उन्होंने पिस्तौल दिखा के डरा रहा होंगे. बट दैन वो देखता है कि द गर्ल इज़ रियली हाफ ड्रेस्ड. जिस तरह उन्हें नाइट गाउन पाना है तो सिर्फ हाफ ड्रेस्ड है वो. ठीक है. शी वॉन्ट लाइक टू कॉल स्ट्रेंजर इन हर बेडरूम इन हर हाफ ड्रेस्ड कंडीशन. ताकि वो अपने किसी भी सोल्जर को इस कंडीशन के अपने बैडरूम च एंटर नहीं करन देगी. रैना ट्राइज टू गेट एट हर for clock that she is lying on sofa. तो रैना वधदी है सोफे वाल, जो असी हुण पिछले पेज से देख आए हैं. तो इत्थे उहदा पिया होया जो है गाउन, नाइट गाउन. तो वो वधदी है, वो अपने बैड तो उन्होंने लैन दे लई. ठीक है. क्लीयर है. तो उन्होंने वधदी है तो वो की करेगा, जो स्ट्रेंजर है, जो कि इन द रियल सेंस कैप्टन ब्लडशिली है, जो हीरो है,
वो आके वो फटाफट क्लॉक उसको खोलेगा, ठीक है। मीन्स ही विल यूज़ दैट क्लॉक, क्लॉक मीन्स अ लॉन्ग टाइप ऑफ गाउन। वो उस क्लोक ਨੂੰ यूज़ करेगा एज मतलब हथियार के तौर पर कि जे मैं पिस्टल दिखाऊंगा तो डरेगी नहीं, शायद जे हाफ ड्रैसड है तो डेफिनेटली किसी को अंदर नहीं आन देगी। क्लियर। Rena won't like any stranger to come there and see in her present half dress. Now a wordy duel starts. Wordy मतलब गल्लां बातां दी लड़ाई, ठीक है। वर्डी मतलब शब्दां दी लड़ाई शुरू हो जाती है बिटवीन रैना एंड अ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मीन्स भज्जिया होया इंसान। नेक्स्ट, रैना सेज दैट अ सोल्जर शुड नॉट बिहेव इन सच एन अनजेंटलमैनली वे। अनजेंटलमैनली, जेंटलमैन होंदा बहुत ही भद्र पुरुष, बहुत वधिया, सिंसीयर विद ऑल द एथिक्स। तो कहते एक चंगे इंसान नूं ऐदां अनजेंटलमैनली बिहेव नहीं करना चाहिए। बट द फ्यूजिटिव इज़ रियलिस्ट, पर जो फ्यूजिटिव है वो की है, रियलिस्ट है, मतलब उन्होंने लगता है कि प्रेजेंट कंडीशन के विच मैनू अपनी जान बचानी चाहिए है। ही सेज दैट देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग एनी मैथड फॉर पर्सनल सेफ्टी। तो वो कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए कोई भी तरीका वरत लेना चाहिए। मीनवाइल अ बिग नॉइज़ इज़ हर्ड इन द स्ट्रीट। तो मीनवाइल मतलब उसी टाइम तो एक आवाज़ सुनाई दिंदी है, कित्थों, गली दे विचों। देयर आर बल्गेरियन सोल्जर चेजिंग द सर्ब्स। केड़े बल्गेरियन सोल्जर, मतलब रैना इज़ फ्रॉम बल्गेरिया, तो किनू सर्च कर रहा है, सर्बियन सोल्जर नू, जो कि रैना दे रूम दे विच है इस टाइम। दे नॉक लाउडली एट द स्ट्रीट डोर ऑफ रैनाज हाउस। तो कितने नॉक करते हैं, रैना दे घर दे बारी। Luca comes to tell Rena that she should at once open the door of her bedroom or the soldiers will break it down. तो कहते हो अपने बेडरूम का डोर खोले, नहीं तो जो सोल्जर है उन्होंने तोड़ देंगे। The fugitive now prepares to face the inevitable. Inevitable मतलब जिन्होंने वो इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन्होंने जो सोल्जर है, स्ट्रेंजर है, उन्होंने लगता है कि उन्होंने फेस करना ही पड़ेगा। ही थिंक्स दैट हिज लास्ट आवर हैज़ कम। लास्ट आवर मतलब उसकी मौत आ गई है। सो ही टेक्स आउट हिज स्वॉर्ड एंड गेट्स रेडी टू मीट द एनिमीज़। तो अपनी तलवार निकालता है, स्वॉर्ड मतलब तलवार निकालता है, तो रेडी है लड़न के लिए। बट रैना हाइड्स हिम बिहाइंड अ कर्टेन नियर हर बेड। बट रैना बहुत स्मार्टली एक्ट करती है क्योंकि वो दिल दे विच सॉफ्ट कॉर्नर है फ्यूजिटिव के लिए। तो रैना की करेगी बच्चे, वो इस जगह पर खड़ी हो जाएगी, रैना इस जगह पर खड़ी हो जाएगी तो उन्होंने कर्टन के पिछे छुपा देगी, तो खुद कर्टन के अगे खुद खड़ी हो जाएगी। एंड वैन दे विल कम तो बहुत बोल्डली जो फ्यूजिटिव जो सोल्जर्स आएंगे, बल्गेरियन सोल्जर्स आएंगे, तो फ्यूजिटिव नूं कर्टन के पिछे खड़ा कर देगी तो आप कर्टन के अगे खड़ी हो जाएगी। तो इन दैट केस तो और किस इस तरीके नाल जो सोल्जर्स नूं बड़ी बोल्डली रिप्लाई करेगी दैट देयर इज़ नो वन इन द रूम, तो बहुत ही स्मार्टली वो उन्होंने बचा लेगी। शी हैज़ बीन सो मच इम्प्रैस्ड बाय द रियलिस्ट व्यूज़ दैट शी डिसाइड टू सेव द फ्यूजिटिव। तो वो इन्नी इंप्रैस हो जाती वो विचारों तो वो गल्लां तो कि वो सोचती है कि उन्होंने बचा लेगी। वैन शी ओपन्स द डोर लुका कम्स इन हरिडली मतलब तेजी नाल एंड टेल्स हर दैट अ सर्प वॉज बीन क्लाइंबिंग अप was seen मतलब देखा गया, क्लाइंबिंग अप द वाटर पाइप ऑफ हर बालकोनी। तो उसकी बालकनी दे विच जो एक जो फ्यूजिटिव है वो चढ़ रहा सी, उन्होंने देखा गया है। नाउ दिस इज़ अनदर सीन। जस्ट दैन तो की होंदा है, जस्ट दैन अ यंग रशियन ऑफिसर कम्स इनटू रैना's बेड चैम्बर। तो हुण कौन आ गया, तो रशियन सोल्जर, रशिया एंड बल्गेरिया इकट्ठे लड़ाई लड़ रहे हैं। ही सर्च अ बालकनी एंड लुक्स अराउंड। अब रैना कर्टन के अगे खड़ी रहेगी तो वो बालकनी नूं सर्च करके आ जाएंगे। क्लियर। ही मेक्स इंक्वायरीज फ्रॉम रैना। तो रैना तो पूछते हैं। शी एश्योर्स हिम दैट नो वन हैज़ कम देयर। तो बड़ी बोल्डली यू कैन सी, बहुत बोल्डली बहुत बहादुरी नाल वो कहती है, शी इज़ रियली ब्रेव कि नो बडी हैज़ कम टू माई रूम। हाउ एवर लुका सीज अ पिस्टल लाइंग ऑन द सोफा इन रैनाज रूम। पर लूका देख लेंदी है कि एक पिस्टल
ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਓਟੋਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਲੂਕਾ ਕਮਸ ਟੂ ਨੋ that there is someone in Rana's room। ਲੂਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਲੂਕਾ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਸਰਵੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰਨ ਦੇਗੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। After feeling satisfied that there is no one in the Rana's room, the Russian officer goes away। The Russian officer चले जाते हैं। He begs pardon। Pardon होता है बेटा किसी तो सॉरी मंगना। Pardon मतलब सॉरी, pardon मतलब I am pardon, please pardon, सॉरी मंगना। तो माफ़ी मंगते हैं for disturbing Rana and others in the house। As soon as the Russian officer goes away, the fugitives come out from behind the curtain। जो fugitive है वो बाहर आता है। He heaves a sigh of relief। Heaves a sigh of relief मतलब वो सुख दा साह लैंदा है, एक रिलैक्स साह लैंदा है। He thanks Rana for the kindness and generosity that she has shown for him। Kindness मतलब दयालु, generosity मतलब वो जी ਉਹਦੀ दयालुता ਉਹਨੇ शो की, एक generous nature, उदार नेचर शो किया है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ थैंक्स कहना है। सो दिस इज़ एक्ट 1। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ tell me in the comment box and send a comment कि yes ma'am we are understanding, then I will go with the another part of the act 1। ऐसे तरीके ਅਸੀਂ पढ़ांगे act 2 act 3, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਬੇਟਾ character sketch of Rana, character sketch of Captain Bluntschli, theme, title ਉਹ ਸਭ डिस्कस करांगे। kindly subscribe the channel for further videos। लाइक शेयर एंड कमेंट। बहुत बच्चे हैं जो प्राइवेट पढ़ते हैं, ट्यूशनस नहीं रख सकते, तब कोशिश की है बहुत बेसिकली समझाने की। ठीक है, जो होर थानू लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं मैम इस तरह समझा दो, तो आई विल ट्राई टू डू इन दैट वे। तो थोड़ा जा हिम्मत हौसला दे दिया करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।